آپ کے اپنے چینل SBR نیوز 24/7 میں آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی کچھ اہم خبروں پر۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرات، آج کی عظیم الشان بنام شیخ المشائخ کانفرنس، تاج المشائخ کانفرنس جو شہر بنگلور میں منائی جا رہی ہے، آپ مجھ سے قبل بہت سارے خطابہ کے خطابات کو آپ نے سنا، بالخصوص حضرت العلامہ مولانا محمد فخر الدین صاحب، جنہوں نے حضرت کی صبح کو دیکھا، شام کو دیکھا، جنہوں نے حضرت کو چلتے ہوئے کھاتے ہوئے لمحے لمحے کو دیکھا، انہوں نے جو بیان کیا بس وہی کافی ہے۔ لیکن ناظم اجلاس نے مجھے دعوت دی، اور میرا تعلق بھی حضرت سے 1-2 سال سے نہیں، تقریباً 22 یا 23 سال سے میرا تعلق بھی حضرت سے ہے۔ میں حضرت کی ذات کو جانتا ہوں، میں بار بار حضرت سے ملا ہوں کہ وہ تاج الدین بابا علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت کیا تھی، ان کے اندر اہل سنت و جماعت کا درد کیا تھا، وہ اہل سنت و جماعت کی نشر و اشاعت کے لیے کس طرح سے اپنی نیچی نگاہوں سے وہ کام کر رہے تھے۔ شاید جو ان کے قریب رہتے ہیں، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے اس کی نگاہیں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں، وہ ولی ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے دیکھا کرتا ہے لیکن آسمان کی بلندیوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ زمین کے نیچے کو دیکھا کرتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو رب کائنات جب کسی کو ولی بنا لیتا ہے تو رب کی زمین اس کی ہو جاتی ہے، رب کا آسمان اس کا ہو جاتا ہے، ہوائیں اس کے اشاروں پر چلا کرتی ہے۔ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اس کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان کی زمین اللہ اپنے ولی کے لیے سمیٹ دیتا ہے۔ ایک قدم بنگلور میں ہوتا ہے یا یوں کہ ہندوستان میں ہوتا ہے تو اس کا دوسرا قدم بغداد شریف میں ہوتا ہے، ایک قدم ہندوستان میں ہوتا ہے تو دوسرا قدم کربلا میں ہوتا ہے۔ ایک قدم اللہ کے ولی کا ایک زمین ہندوستان پر ہوتا ہے، رب زمین کو سمیٹ دیتا ہے، دوسرا قدم اس کا خانہ کعبہ میں ہوتا ہے۔ ایک قدم ولی کا ہندوستان میں ہوتا ہے تو دوسرا قدم گنبد خضرا کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے رب کائنات کا جو دوست ہو جاتا ہے، رب کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے، زمین اس کی ہوتی ہے، آسمان کی بلندیاں اس کی ہوتی ہے۔ وہ آسمانوں پر چلتے ہوئے بادلوں کو اشارہ کرتا ہے تو بارش پڑنے لگتی ہے، اشارہ کرتا ہے تو بادل بارش کو روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ رب کا دوست ہوتا ہے، رب کا ولی ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلنا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے زمین اس کی ہوتی ہے، آسمان اس کا ہوتا ہے، دریا کی لہریں اس کی ہوتی ہے، ہواؤں کی فضائیں اس کے قبضے میں ہوتی ہے۔ بلکہ یہی نہیں، رب نے جو کائنات کو پیدا کیا ہے انسان ہی نہیں جانوروں کا مزاج اس کے قبضے میں ہوتا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے اس جانور کو بلا لیتا ہے، اور جس انسان کو چاہے اپنی بارگاہ میں بلا کر وہ اللہ کا ولی بنا دیا کرتا ہے۔ حضرت تاج الدین بابا وہ ذات کا نام ہے، وہ
उस शख्सियत का नाम है, उस अल्लाह के वली का नाम है कि हमने तो पढ़ा है, हमने देखा नहीं था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को हमने पढ़ा है, उमर फारूक आजम की नमाजों को हमने पढ़ा है, मौलाए कायनात के तकवे को हमने पढ़ा है, हजरत गौसुल आजम की नमाजों को पढ़ा, हजरत गरीब नवाज की नमाजों को पढ़ा, लेकिन किसी को पढ़ा है, किसी को देखा नहीं। अगर आज इस स्टेज पर खड़े होकर मैं कहूंगा अगर आज हमने देखा है तो उस जात का नाम ताजुद्दीन बाबा है कि उनकी हमने जो नमाजों को देखा, नमाज लाजवाब थी, उनका तकवा लाजवाब था, उनकी हर कदम लाजवाब था, बल्कि उनके वजू करने का अंदाज लाजवाब था। आपने देखा है, मैंने भी देखा है, बारे बार लोग बोलते हैं हजरत वजू करते थे तो बड़ा लंबा वजू होता था। मैंने खुद मस्जिद बिलाल में देखा है, जामिया बिलाल हजरत तशरीफ लाते थे तो आप पूछते थे कि जामिया बिलाल कैसा चल रहा है, लड़कियां कितनी हैं, दौरे हदीस में कितने बच्चे हैं। हजरत जब भी आते थे सवाल जरूर करते थे आपकी निगाह कहां तक थी, और हर आलिम से मिलते थे तो पूछते थे मौलाना आलिम हो के नहीं और कहां से फारिग हो, पूछा करते थे, नवासा करते थे। हुजूर ताजुद्दीन बाबा तकरीबन 2001 की बात है, अलहाजी अमीर जान साहब चेयरमैन मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल ने कहा बीटीएम लोड की तरफ कहीं हजरत तशरीफ लाए थे, कहा चलो असातिज़ा गए, वो जाने के बाद बैठे, मेरा एक जवानी का आलम था। हजरत ने कहा आप कहां से आए हैं, मैंने कहा हजरत कहां पढ़े हैं, मैंने कहा हुजूर हिफ्ज़ तो बेंगलोर में किया है लेकिन दरसे निजामी को जामिया नईमिया और मंसर इस्लाम पढ़ा है। कहा बरेली शरीफ में, मैंने कहा हुजूर बरेली में। कहा आला हज़रत की नात यहाँ पढ़ते हो, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रात मैंने नात पढ़ी, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जा तुम्हारे लिए। जब मैं पढ़ता रहा खुदा की कसम हजरत ने इतना नवाजा था कि उसके बाद किसी ने उतना नहीं नवाजा, तो वो नवाजा करते थे, वो छोटों पर शफकत किया करते थे। उनके सामने हमने देखा है, मैंने अर्ज कर रहा था हजरत वजू फरमाते हैं, लोग कहते हैं आधा घंटा लग जाता है, पौना घंटा लग जाता है। लोग सूफी कहते हैं ये तो पानी का इसराफ करते हैं, पानी खर्च करते हैं, ये वजू कैसा है। लेकिन शरीयत को पढ़ोगे तो पता चलेगा। शरीयत कहती है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन नमाज के लिए वजू करता है उसकी नमाज में वजू करना भी इबादत में शामिल होता है। लेकिन ताजुद्दीन बाबा जो ऐसा वजू करते थे हमने बारे बार देखा। हमसे बच्चे पूछा करते थे, जामिया बिलाल के तलबा पूछे हजरत आप बता रहे थे हजरत ने इतना लंबा वजू किया, तो हमने कहा जरा मासी में चले जाओ और जाने के बाद पढ़ो। वो मेरा हजरत नजमुद्दीन कुबरा है, वो अल्लाह का वली है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा वजू फरमा रहे हैं और इतनी देर हो गई, लोटे पर लोटा आ रहा है, वजू करते हुए जा रहे हैं, लोग लाते लाते परेशान है, लेकिन हजरत नजमुद्दीन कुबरा का वजू नहीं होता है। काफी ताखीर हो गई, काफी ताखीर के बाद हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने कहा अरे क्यों नहीं देता है, मैं बिना दलील के खुदा एक मानता हूं। इतना कहा लोटे से पानी उठाया और आसमान की तरफ डाल दिया। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है आपके मुरीदीन ने कहा हजरत जलाल में था, नहीं पूछा, थोड़ी देर के बाद सवाल किया हुजूर मामला क्या था, इतनी देर तक वजू करते रहे और आखिर में पानी को फेंक दिया था, मामला था क्या। तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया मेरा मुरीद फखरुद्दीन रासी आखिरी वक्त में था, शैतान रब्बे कायनात के लिए दलील मांग रहा था, मैं उसकी दलीलों को सुन रहा था। 360 दलाइल राशि ने दिए, शैतान दलीलों को काटता रहा और मैंने कहा अरे बिना दलील के क्यों नहीं देता है, मैं खुदा को एक मानता हूं बिना किसी दलील के। पता चला कल वो नजमुद्दीन कुबरा थे, आज भी ताजुद्दीन बाबा जो इतना लंबा वजू करते थे ऐसा लगता था किसी मुरीद के या किसी आशिक के गुनाहों को माफ करा रहे।
वैसे ही वजू नहीं था, वो वजू में बड़े राज थे, उस वजू में बड़ी चीजें हुआ करती थी। हम तो बाबा को देखते थे, लेकिन वो अर्शे आज़म को देखा करते थे, वो तो रब से बातें किया करते थे। मेरे रसूल ने इरशाद यही तो फरमाया है, नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो और खुदा तुम्हें देख रहा है। अब रात हम वो नमाजें पढ़ते हैं, हमारी नमाज में हमें एक ख्याल होता है कि हमारा रब हमें देख रहा है, लेकिन नमाज वो होती है कि जिस नमाज में ये ऐसा हो कि हम रब को देख रहे हो। हजरत ताजुद्दीन बाबा का आलम यही है कि ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं तो आधी रात हो जाती है, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, फजर का वक्त हो जाता है, फजर पढ़ने के बाद इशराक में आ जाते हैं, नमाज ज़ोहर पढ़ते हैं तो असर का वक्त होता है। मैंने सुना है 18 घंटे हजरत नमाज ही में रहा करते थे। पता ये चला कि हजरत जब नमाज को खड़े होते थे वो आपके जलवों को देखते थे और अब उन्हें देखता था। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वही होता है जो अपने रब से टूट कर मोहब्बत करता। तो हजरत ताजुद्दीन बाबा, आज हमें उनको याद करना होगा। आज उनकी मिसाल हमें नजर नहीं आती है, हमने उनके तक़वे को देखा है, उनकी नमाजों को देखा है। हालात इसी शहर बेंगलोर में दो ईमान वालों में थोड़े से कुछ मामलात आ गए, मैं उसे नहीं जाहिर करना चाहता, लेकिन आज मेरे जहन में अभी अभी वो बात आई तो हजरत ताजुद्दीन बाबा शहर बेंगलोर में आ गए और आने के बाद एकदम उनमें सुलह कराई और सुलह कराने के बाद मैं बारे बार हजरत के पास आ रहा था, जा रहा था, तो कहा हजरत मौलाना साहब जब तक सुलह न हो नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। मैं बारे बार हजरत की बारगाह में बैठा था, 2 दिन हो गए। हजरत ने जब सुलह कराई ना तो हजरत ने इरशाद फरमाया, ये सुलह का मामला तो था ही, लेकिन मेरे सहन में ये था कहीं शहर बेंगलोर में अहले सुन्नत व जमात का काम न रुक जाए। मेरा मतलब यही है कि सुलह होने के बाद शहर बेंगलोर में अहले सुन्नत व जमात का काम हो। तो ये बुजुर्गों का काम था, हमारा तरीका यही है, हम अहले सुन्नत व जमात है। हमारी माएँ अपनी छाती के दूध जब पिलाती है उसमें इश्क वली होता है। हम वलियों का इश्क अपनी माँ के दूध से लेकर हम जलाल होते हैं। ये मसलक के हक का अहले सुन्नत व जमात यही है। हम वलियों से कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें रोज़े क़यामत तक औलिया किराम से मोहब्बत करती रहेंगी। तो ये औलिया किराम है, इन्हीं औलिया किराम को हमें मानना होगा जिनका तकवा भी लाजवाब है, जिनकी इबादत भी लाजवाब है, जो छोटों पर शफकत करते हैं और बड़ों पर मेहरबानियां करते हैं। वो हजरत ताजुद्दीन बाबा हैं। तो हजरत मोहतरम, हमने देखा मौलाना फखरुद्दीन साहब ने कहा था कि जो अल्लाह का वली होता है वो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए से लोगों के ज़हनों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। हमने देखा हजरत का विसाल हुआ तो गुलबर्गा शरीफ में कहाँ का इंसान नहीं था, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कर्नाटक से यानी बेंगलोर से जा रहा है, लोग चारों तरफ से आ रहे हैं। ये मामला है क्या? पता ये चला कि इनके दिलों में अल्लाह ने अपने वली की मोहब्बत को डाल दिया, कारोबार छोड़ दिया है, एक वली के जनाजे में शामिल हो चुके हैं। तो हजरत मोहतरम हजरत ताजुद्दीन जुनैदी अली रहमतुल रिज़वान वो हमारे असलाफ में से वो नमूने सल्फ़ो सालिहीन थे। वो सिर्फ अल्लाह से प्यार करते थे, वो फना फिल्लाह थे, वो फना फिर रसूल थे, वो फना फिर शेख थे। करामत देखकर कभी किसी पर गर्विदा मत हो जाना। वली करामत को जैसे एक औरत अपने अय्याम ऐश को छुपाती है, वली अपनी करामत को छुपाता है। यही हजरत जुनैद बगदादी के 25वीं पुश्त के सिराज ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि करामत देख कर नहीं बल्कि रसूल की शरीयत पर चलो, यही सबसे बड़ी करामत है और यही करके हजरत ताजुद्दीन बाबा ने दिखाया है। मैं रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SBR News 24।